Working in Python. Before you start working in Python, you need to install Python on your computer. There are multiple Python distributions available, but from the starting we are going to use the very basic one, that is Python IDLE. Anaconda, NumPy, SciPy and Spider and PyCharm, we are going to discuss it after one or two lessons. So in this lesson and in coming lesson we are going to focus on IDLE only. So default installation available from www.python.org is called CPython installation and comes with Python interpreter, that is Python IDLE, Python GUI and pip, that is package installer. There are many other Python distribution available these days, like Anaconda Python distribution is one such highly recommended distribution that come preloaded with many packages like NumPy, SciPy, Panda library. इसके बारे में भी आप आगे डिटेल से पढ़ेंगे. And many popular IDEs also available. Example Spider IDE, PyCharm IDE, etc. Of these, Spider IDE is already available as part of Anaconda Python distribution. तो देखिए आपको दो चीज़ें यूज़ करनी है. एक तो आपको बेसिक पाइथन यूज़ करना है, पाइथन का इंटरप्रेटर, और दूसरा अनाकोंडा. तो अभी हम केवल पाइथन के बारे में फोकस करेंगे, अनाकोंडा के बारे में हम आगे देखेंगे. तो पाइथन अगर आपको इंस्टॉल करना है तो सभी लोग देखिए कि हम एक वेबसाइट एक्सेस करते हैं www.python.org/downloads. तो इतना आप URL लिखेंगे जो यहाँ पे दिख रहा है, https www.python.org/downloads. ये पेज ओपन होगा. इसमें जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन 3.8.5, इस पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा आपके कंप्यूटर में. अब एक बार जब डाउनलोड हो जाएगा तो इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा. और इंस्टॉलेशन में कुछ समय का टाइम लगेगा, हार्डली इट विल टेक 5 to 10 minutes. And once it get installed in your computer, then to start Python, just search IDLE here and click on open button. IDLE will automatically open like this, and when the 3 greater than symbol appears, तो आप समझ जाइएगा कि Python IDLE is working. So this is Python 3.8.5 version. This is the latest version which is available today. तो पहला टास्क आपका ये होगा कि आप लोग अपने कंप्यूटर में इस पाइथन के वर्जन को डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए. देन वी विल प्रोसीड फर्दर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, once you have Python installed on your computers, you are ready to work on it. You can work in Python in following different ways. First, interactive mode, also known as immediate mode, and second, in script mode. तो दो मोड होते हैं हमारे पाइथन के, इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड. इंटरैक्टिव मोड को ही हम इमीडिएट मोड भी बोलते हैं. Now, if we want to work in CPython, that is the very default Python, that is IDLE. So the default distribution CPython comes with Python interpreter and Python IDLE GUI based and pip package installer. To work in interactive as well as in script mode, you need to open the Python IDLE. तो पहले आपको अपना Python का IDLE ओपन करना होगा. ये Python IDLE आपने ओपन कर दिया. Now moving forward, in interactive mode of working means you type the command, one command at a time, and the Python execute the given command there and then and gives you output. In interactive mode, you type the command in front of Python command prompt. For example, if you type 2 + 5, the Python prompt it will give you result 7. तो Python
का जो इंटरेक्टिव मोड है वो आइडियली का ये जो डायरेक्ट मोड है वो ये है। अब यहाँ पे आके अगर आप टाइप करो 2+5, आप एंटर की प्रेस करेंगे तो रिज़ल्ट मिल गया आपको 7। अगर आप कर दो 10-3, रिज़ल्ट आपको मिलेगा 7। अगर आपने कर दिया 15/3, रिज़ल्ट मिलेगा 5.0। अगर आपने लिख दिया 15 × 5, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा 75। तो पाइथन के इंटरेक्टिव मोड में आप डायरेक्ट कमांड टाइप करते हैं और आपको वहीं पे रिज़ल्ट मिल जाता है। ये होता है हमारा इंटरेक्टिव मोड। लेकिन इसमें अगर हमें कोडिंग करनी हो, a हमने रखा 10, b हमने किया 20, और उसके बाद हमने लिख दिया c a+b, और उसके बाद हमने लिखा प्रिंट ब्रैकेट में c, तो हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा 30। लेकिन अगर सेम चीज़ को हमें दोबारा एग्जीक्यूट करना हो, जैसे a = 20, b = 10, b = 20, c = a+b प्रिंट c, अगर ये एक प्रोग्राम हो और हम चाहते हैं कि बार बार इसका रिज़ल्ट देखें, तो ये चीज़ इंटरेक्टिव मोड में अगर आप करना चाहते हैं तो आपको रीटाइप करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको यही काम दोबारा से करना है तो दोबारा से आप इस कोड को टाइप करेंगे, तभी जाके आपको रिज़ल्ट मिलेगा। So this is the drawback of interactive mode. So to work in interactive mode, follow the process given below. Click on start button, then all program, then Python, जो भी वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, and then ideally, or click on start button, all program, then Python, whatever version you are using, and then Python command line. In both of the cases, the ideally or command prompt will open, and it is signified by the 3 > symbol. This is the Python command prompt symbol. If you see this, that means your ideally or Python is working. It will open Python shell where you see the Python prompt sign, this one. Now type the command in front of the Python prompt and Python will immediately give you the result, जैसा कि अभी आपने देखा भी है. For example, to print string hello on the screen, you need to type the following in front of the Python prompt, that is print bracket double quotes hello. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि अगर हमने यहाँ पे print c लिखा है तो ये 30 प्रिंट कर रहा है. अगर हम यहाँ पे लिख देते print d, तो इस केस में आप देखिए क्या होगा, हमें एरर मिलेगा. क्यों एरर मिलेगा? क्योंकि नेम डी इज़ नॉट डिफाइंड. जो नेम डी है वो डिफाइंड नहीं है. अगर इसी की जगह पे हम लिखते प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट्स में डी, तो ये प्रिंट कर देता डी. तो प्रिंट स्टेटमेंट जब भी हम यूज़ करते हैं और उसके ब्रैकेट के बीच में अगर कोई भी वैल्यू हमने पास की और वो वैल्यू कोट्स के अंदर दी गई है, सिंगल कोट्स या डबल कोट में दी गई है, तो उसको एज अ वैल्यू ट्रीट किया जाता है. और अगर बिना कोट के अंदर हमने अगर वैल्यू पास की है तो उसको एज अ वेरिएबल ट्रीट किया जाता है. और अगर हमने बिना कोट के कोई नाम दिया है और वो पहले से बना हुआ वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू प्रिंट की जाएगी. अदरवाइज़ एरर हमारे सामने आएगा. जैसे अगर हमने लिखा प्रिंट ब्रैकेट में a, हमें रिज़ल्ट मिलेगा 10. अगर हमने लिखा प्रिंट ब्रैकेट में b, तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा 20. अगर हमने लिखा प्रिंट ब्रैकेट में c, तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा 30. लेकिन अगर हमने लिखा प्रिंट ब्रैकेट में d, तो इस केस में हमें एरर मिलेगा बिकॉज d इज़ नॉट डिफाइंड. तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है. अगर हम प्रिंट करके डबल कोट में हमने डाल दिया आर्मी पब्लिक स्कूल कुंडराघाट और डबल कोट क्लोज कर दिया, तो इस केस में हमको आर्मी पब्लिक स्कूल कुंडराघाट टाइप करके एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे मिल जाएगा. तो दिस इज़ द इंटरेक्टिव मोड. तो इंटरेक्टिव मोड में आपको ये याद रखना है कि जब हम कमांड टाइप करेंगे तो कमांड टाइप करने के साथ ही साथ आपको कमांड का रिजल्ट भी एज एन आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया जाएगा. एंड द पाइथन इंटरप्रेटर विल इमीडिएटली डिस्प्ले स्ट्रिंग हेलो बिलो द कमांड लाइन. जैसा अभी हमने आर्मी पब्लिक स्कूल टाइप किया तो वो आ रहा है, हेलो टाइप करेंगे हेलो मिलेगा. टू डिस्प्ले यू जस्ट नीड
to mention name or expression in front of prompt. Now, working in script mode. So, what if you want to save all the commands in the form of program file and want to see all output line together rather than sandwiched between successive command? With interactive mode, you cannot do so for. Now, interactive mode does not save the command entered by you in the form of program. द आउटपुट इज सैंडविच बिटवीन द कमांड लाइन. तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि अगर हम इंटरेक्टिव मोड में वर्क कर रहे हैं, जैसे ए लिखा ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 20, इस तरीके से हमने लिखा, तो जब हमने कमांड टाइप किया वहीं पे उसका रिजल्ट मिल जा रहा है. दो प्रॉब्लम है इसके साथ, ना तो आउटपुट सेव हो रही है ना ही हमारा प्रोग्राम कहीं सेव हो रहा है, और साथ ही साथ जो आउटपुट्स हैं वो सैंडविच्ड फॉर्म में आ रहे हैं. हमने एक लाइन टाइप किया, उसकी आउटपुट आई, फिर दूसरा लाइन टाइप किया, फिर उसका आउटपुट आया, फिर तीसरी लाइन टाइप किया, फिर उसका आउटपुट आया. तो ये प्रॉब्लम होती है अगर हम कमांड मोड में काम करते हैं. सो टू ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, स्क्रिप्ट मोड इज़ यूज्ड. So the solution to the above problem is the script mode. To work in a script mode, you need to do the following. First, create module, script or program file. तो पहले आपको कोई मॉड्यूल, स्क्रिप्ट या प्रोग्राम फाइल बनाना होगा. एंड टू मेक इट, फर्स्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, पाइथन एंड आइडियली. तो एक बार जब आपने आइडियली ओपन कर दिया, फिर आप क्लिक करेंगे फाइल पे एंड देन गो टू न्यू इन आइडियली पाइथन सेल. In the new window that opens, type the command you want to save in the form of program or a script. For instance, the simple hello world program, you will need to type the following line: print bracket double quotes hello world, and then you save and with .py extension. तो ये याद रखना है कि जब भी हम प्रोग्राम को सेव करेंगे तो यहाँ पे .py लगाएंगे. py stands for Python. So save with .py extension with file save command, that is in script mode. Now click file, save, and then save the file with extension py. The Python program has py extension. For instance, we give the name to our program as hello.py. Now your program would be saved on the disk and save file will have .py extension. तो पहले हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और सेव करते हैं. तो इसके लिए पहले हमें फाइल टैब पे जाना होगा और उसके बाद न्यू फाइल पे हम क्लिक करेंगे, या इसका शॉर्टकट भी है Ctrl+N. अगर हम Ctrl+N डायरेक्टली दबाएंगे तो भी ये ओपन हो जाएगा. तो यहाँ पे न्यू फाइल हमारी ओपन हो गई. अब यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को टाइप करेंगे, जैसे हमने लिखा यहाँ पे प्रिंट ब्रैकेट में डबल कोट्स में हमने यहाँ दे दिया हेलो वर्ल्ड, डबल कोट क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, इसको सेव किया. सेव करने के लिए Ctrl+S करेंगे, या फाइल में जाके आप सेव बटन पे भी प्रेस कर सकते हो. सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इफ़ यू आर सेविंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. नाउ इन सेव एज डायलॉग बॉक्स आपको लोकेशन ब्राउज़ करना होगा जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं. साथ ही साथ आपको प्रोग्राम का नाम देना होगा, और प्रोग्राम का नाम देने के बाद आपको उसका एक्सटेंशन देना होगा. तो मैं इसका लोकेशन नहीं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने लिख दिया hello.py. अब इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, प्रोग्राम सेव हो गया. नाउ टू रन द प्रोग्राम और रन द मॉड्यूल और रन द स्क्रिप्ट, how what we can do. So after the program script file is created, you can run it by following the given instruction. Open the desired program script file that you created in previous step, that is step 1, using the ideally file open command. If the program script file is already open, you can directly move to the next instruction. Now click on run or run module command in the open program script file window. You may also press F5 key to execute it, and it will execute all the commands stored in the module or program or script that you have opened and show you the complete output in separate Python shell window. Now
वी आर गोइंग टू सी दिस। तो जैसे ये पाइथन का था आइडियली, और ये प्रोग्राम हमने बनाया है, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। अब उसे ओपन करने के लिए फ़ाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे। अब फाइल में जाके जब ओपन पे हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे ये देखो हेलो जो पाइथन का प्रोग्राम है वो एग्जिस्ट कर रहा है, हमने ओपन किया इसको। फिर उसके बाद हम इसमें रन पे जाएंगे और रन के पे जाके रन मॉड्यूल बटन पे प्रेस करेंगे। तो जब हमने रन मॉड्यूल बटन प्रेस किया, ये जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूशन के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, जो आप देख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड। नाउ मैं इसमें कुछ प्रोग्राम्स आपको बताने जा रहा हूँ। आज का आपका ये टास्क होगा कि आज आप लोग अपने लैपटॉप में अभी डाउनलोड करेंगे पाइथन और उसको इंस्टॉल करेंगे, एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन दोनों मोड में वर्क करेंगे, इंटरैक्टिव मोड में भी और स्क्रिप्ट मोड में भी। और मैं कुछ सिंपल प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ जिसका यूज़ करेंगे आप अपने प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए। आई थिंक इन क्लास 9th and 10th you all have learned how to work in Python। यहाँ पे अब हम उस चीज़ों को हम थोड़ा पहले रिवाइज करेंगे एंड देन वी कंटिन्यू फर्दर। तो पहले हम फाइल पे जाते हैं, न्यू फाइल हमने किया, यहाँ पे मैंने ले लिया a इज़ इक्वल्स टू 20 एंड b इज़ इक्वल्स टू हमने ले लिया 10। we are not taking input from the user, we are just simply giving values along with the variable। अब यहाँ पे हमने लिखा c इज़ इक्वल्स टू, या c की जगह पे हमने ले लिया add इज़ इक्वल्स टू a प्लस b, सब इज़ इक्वल्स टू a माइनस b, div इज़ इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b, मल इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई b। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल एस्ट्रिक होता है। अब यहाँ पे हमने एक एक करके प्रिंट कर दिया, प्रिंट a डबल कोट्स में a इज इक्वल्स टू डबल कोट क्लोज कॉमा a, प्रिंट डबल कोट्स b इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा स्पेस यहाँ भी दे रहे हैं, यहाँ पे भी b इज इक्वल्स टू डबल कोट क्लोज कॉमा b, प्रिंट डबल कोट्स एडिशन इज इक्वल्स टू डबल कोट कॉमा एड, प्रिंट डबल कोट्स सब्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू डबल कोट्स कॉमा सब, प्रिंट डबल कोट्स डिवीज़न इज इक्वल्स टू डबल कोट्स कॉमा डिव, एंड प्रिंट मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू डबल कोट्स कॉमा मल। ब्रैकेट क्लोज किया, इसको हम सेव करेंगे और इसको हमने दे दिया prog1.py, ये एक नाम दे दिया, और F5 हम प्रेस करेंगे। F5 हमने प्रेस किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं a इज इक्वल टू 20 है, b इज इक्वल्स टू 10 है, एडिशन का रिजल्ट आ रहा है 30, सब्ट्रैक्शन का 10, डिवीज़न का 2, मल्टीप्लिकेशन का 200। okay, so this is the first basic program in which I have taken few variables a b and then उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये सारे रिजल्ट अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करके उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। नाउ नेक्स्ट बेसिक प्रोग्राम दैट वी आर गोइंग टू डिज़ाइन इज टू फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो उसके लिए फिर हमने कंट्रोल N किया, एक नई फाइल बनाई। यहाँ पे मैं एक कमेंट दे रहा हूँ, कमेंट ऑलवेज स्टार्ट विथ हैज़ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया
and parameter of a rectangle. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले माना कि जो लेंथ है हमारे रेक्टेंगल की वो 5 है और ब्रेड्थ जो है वो 6 है। इसकी वैल्यू हम इनपुट भी ले सकते हैं, आगे मैं आपको इनपुट फंक्शन बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन टेक इनपुट इन आवर प्रोग्राम. नाउ टू फाइंड एरिया वी हैव रिटन एरिया इज इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई बाई B, दैट मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ, एंड पैरामीटर P इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में L प्लस B. Then after print in bracket double quotes perimeter of a rectangle is equals to in double quotes close comma P and print double quotes area of a rectangle is equals to double quotes comma area. Save it with prog2.py name and press F5 to refresh it. See, program is executed and will get parameter of rectangle is 22 and area of rectangle is 30. So this is the program code for this particular execution. Now next program we are going to make is to find the area of a circle. So for that I am making another program as program to find area of a circle. Now first of all I have taken R, that is radius, is equals to 6. Now another variable pi is equals to 22 divided by 7. Now to find area I am writing area is equals to pi multiply by R multiply by R, because area is pi R square. And suppose we also want to find circumference, so for that I am writing CIR is equal to 2 multiply by pi multiply by R, because circumference of a circle is 2 pi R. So 2 multiply by pi multiply by R. Now afterward I am writing print double quote area of the circle is equals to double quote comma area and print double quote circumference of the circle is equals to double quote close comma CIR. Now if we refresh it or execute it, तो first it will ask to save this file. तो ये भी याद रखिएगा, अगर हम डायरेक्टली रन कराने की कोशिश भी करेंगे तो हमें पहले सेव करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा. यहाँ पे मैंने नाम दे दिया prog3.py. सेव किया, रिफ्रेश हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, रिजल्ट हमें मिल रहा है एरिया ऑफ द सर्किल इज 113.142 and circumference is 37.71. So that's all for today's video. Today you have to download Python from the web
install it in your computer and try to execute all the programs that I have explained. Thank you.